ان ٹھیکیداروں کی پارٹیاں وہ کتنے یتیم بچوں کی کفالت کرتے ہیں، کتنے ایمبولینس سروس چلاتے ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ریاست سنجیدہ نہیں ہے، اس بات کی دلیل ہے اس ریاست میں کرپشن ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس ریاست میں یہ نوجوانوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہم پہلے مرحلے پر ایک ہی لیب سے سٹارٹ کریں گے اور اس میں ہمارے پاس 1000 کی زیادہ کی کیپیسٹی موجود ہے۔ کل 19 ستمبر کو شام 4 بجے ایوب اسٹیڈیم میں انشاءاللہ بنو قابل پروگرام کا پورے بلوچستان میں لانچ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ آج پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان کے نوجوان، اللہ پاک نے بے شمار صلاحیتیں بلوچستان کے نوجوانوں کو دی ہیں۔ جیسے بلوچستان ایک پہاڑوں کا صوبہ ہے، صحرا کا صوبہ ہے، اسی طرح سمندر ساحل ہے، گہرا سمندر کا صوبہ ہے۔ جب پہاڑی کے رہنے والے نوجوان ایک مضبوط صلاحیت کے لوگ ہوتے ہیں، سمندر کے قریب رہنے والے لوگ گہرے صلاحیتیں رکھتے ہیں، صحراؤں میں رہنے والے لوگ بڑے تجربہ اور صلاحیت رکھتے ہیں، اسی طرح ہمارا نوجوان اسی موسم، اسی علاقوں کے اعتبار سے بہت ہی باصلاحیت ہیں، باہمت ہیں، لیکن مواقع نہ ہونے کی وجہ سے، سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بلوچستان کے لاکھوں نوجوانوں کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں یا غلط استعمال ہو رہی ہیں۔ اسی وجہ سے وہ نوجوانوں کو مواقع نہ ملنے یا نوجوانوں کی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے آج نوجوان مایوس ہے، آج پر مایوسی پر ناراضگی کی طرف چلا گیا ہے، وہ پہ ناراضگی بیزاری کی طرف چلا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اس میں ہماری باصلاحیت نوجوان کی کوئی سیاسی سرپرستی ہو، سرکاری سرپرستی ہو نہیں ہے۔ آج نوجوانوں کو ہم نے، ہمارے ریاست نے، حکومتوں نے منشیات کے اڈے تو دیے تاکہ نوجوان بآسانی منشیات کی طرف جا سکے، یہ ایسے مواقع نوجوانوں کو دیے گئے کہ نوجوان سماجی خرابیوں کی طرف چلا جائے۔ ایسے مواقع تو نوجوانوں کے پاس تو ہیں، لیکن نوجوان اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرے، نوجوانوں کی اندرونی صلاحیت نکھر کر سامنے آئے، اسکل ڈیولپمنٹ نوجوانوں کی تربیت ہو، نوجوانوں کو جدید آئی ٹی کے جدید ٹیکنالوجی سے ہم آراستہ کریں۔ اس طرح کی کوئی سیاسی سرپرستی یا سرکاری سرپرستی ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ ریاست کی ذمہ داری اصلاً کہ یوتھ وہ ایک ایسی عمر ہے کہ وہ ہر جگہ کام آتا ہے اور ملکوں کو نوجوان ہی چلاتے ہیں، اور امت میں، امت کی خاصیت ہے، اور پاکستان کی یہاں 60 سے 70% یوتھ ہے، نوجوان ہے، اور بلوچستان میں بھی اسی طرح نوجوان ہے۔ جس قوم کے پاس 60 سے 70% نوجوان ہو اور وہاں پھر بھی معاشی بدحالی ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ریاست سنجیدہ نہیں ہے، اس بات کی دلیل ہے اس ریاست میں کرپشن ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس ریاست میں یہ نوجوانوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو ہم بطور ایک سماجی تنظیم کے خدمت فاؤنڈیشن یا ایک سیاسی جماعت کے جماعت اسلامی، ہم سیاسی مزاحمت بھی کرتے ہیں، ہم احتجاج بھی کرتے ہیں، اب دھرنے اور لانگ مارچ بھی کرتے ہیں، لیکن بطور ایک سماجی تنظیم کے، ایک سیاسی کارکن کے یا سیاسی تنظیم کے، ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی قوم کو ہم کیا دے سکتے ہیں، ہم اپنے قوم کو کیا دے سکتے ہیں۔ جب ایسا ماحول میں جب قوم کے پاس تعلیم نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، نوجوان مایوس ہے، ہم اپنا کتنا حصہ ادا کر سکتے ہیں۔ جب آگ لگی ہوئی ہو، اس آگ بجھانے میں ہم کتنا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں بطور ایک سیاسی جماعت کے، بطور ایک سماجی تنظیم کے۔ الحمدللہ ہم الخدمت فاؤنڈیشن ہو یا جماعت اسلامی ہو، بلوچستان میں تو میں دعوے سے کہتا ہوں تمام سیاسی پارٹیاں، کتنی سیاسی پارٹیاں ہوں، وہ اقتدار میں ہیں یا اقتدار سے باہر ہیں، قوم پرست پارٹیاں ہیں یا مذہبی پارٹیاں ہیں، میں چیلنج کے طور پر کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ سماجی کام جماعت اسلامی کے علاوہ بلوچستان میں کوئی نہیں کر رہا۔ اگر تعلیمی ادارہ چلا رہا ہو، اگر ہزاروں یتیم بچوں کی ماہانہ کفالت کر رہا ہو، اگر سینکڑوں نوجوانوں کو اسکالرشپ دے رہا ہو، اگر سیلاب اور زلزلہ اور زمین و آسمان کی آفت ہو تو سب سے زیادہ خدمت کرنے والا ہو، یا ان کے گھروں کو بنانے والا ہو، یا ہاسپٹل تعمیر کرنے والا ہو، ایمبولینس سروس چلانے والا ہو، تو جماعت اسلامی کے علاوہ ایک غریب جماعت اسلامی ہے، لیکن بڑی بڑی امیر پارٹیاں ہیں، امیر پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، ٹھیکیداروں کی پارٹیاں ہیں،
उन ठेकेदारों की पार्टियां और कितने यतीम बच्चों की किफ़ारत करते हैं, कितने एम्बुलेंस सर्विस चलाते हैं। आज भी मेरे तीन प्रोजेक्ट जो है, एक क्वेटा में हॉस्पिटल बरूरी रोड में चल रहा है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 32 करोड़ का मेरा जाफराबाद में हॉस्पिटल तामीर हो रहा है, आगोश का यतीम बच्चों का तालीमी इदारा बेला में तामीर हो रहा है, गवादर में मंशियात से आती नौजवानों को इलाज के लिए हॉस्पिटल और 5 एकड़ पर मुहित ग्वादर में तामीरात शुरू है। तो ये वो वसाइल हैं जो किसी हुकूमत के नहीं है, किसी सियासी सरपरस्ती में नहीं है, किसी सरकारी सरपरस्ती में नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी हम कोशिश कर रहे हैं अपनी कौम को क्या दे सकते हैं, बलूचिस्तान के अवाम को क्या दे सकते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह एक बनो काबिल एक प्रोग्राम है, मोहतरम अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर्रहमान साहब ने कराची से शुरू किया था, कराची मॉडल था कि अपने नौजवानों को स्किल की जदीद IT की हम तालीम दें, उनकी सलाहियतों को उभारें, ताकि ऑनलाइन आजकल निज़ाम है, ताकि वो खुद कफालत की तरफ जाए, नौकर के बजाय मालिक बन जाए, वो खुद कमाना शुरू कर दे, खुद कफील हो जाए, किसी का गुलाम हो, किसी का नौकर न बने, उसको जदीद IT स्किल डेवलपमेंट की तालीम दे और मुफ्त दे देगा। उसके पास वसाइल नहीं है, तमाम अखराजात हम बर्दाश्त करें, टीचर का, सेंटर्स का, कोई मुफ्त हम उसको तालीम दे दे। तो कराची से अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ था, लाखों नौजवानों तक हमने ये तालीम पहुँचाया है। इंशाअल्लाह बलूचिस्तान में ये बनो काबिल प्रोग्राम का आगाज़ इंशाअल्लाह कल अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम हाफिज नईमुर्रहमान साहब कल 19 सितंबर को शाम 4 बजे अयूब स्टेडियम में इंशाअल्लाह बनो काबिल प्रोग्राम का पूरे बलूचिस्तान में लॉन्च करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह कल हम इंशाअल्लाह इसका आगाज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ आज अभी जो क्वेटा में कल जो होगा, तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन है हमारी 12,000 नौजवानों में सिर्फ जिला क्वेटा में अब तक वो रजिस्ट्रेशन हमारे पास है। तो इसमें जो लड़के हैं 9,170 और लड़कियाँ 2,830, अभी 3,000 लड़के के हो गए हैं और 600 हमारे रजाकार का इंशाअल्लाह ड्यूटी भी देंगे। मोहतरम अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान इसमें कल इसमें शिरकत करेंगे, इसका इफ्तिताह करेंगे। उसके बाद बड़ी बड़ी सरगर्मियाँ हम गवादर में भी करेंगे, जाफराबाद में भी करेंगे, लेकिन जहाँ इंशाअल्लाह रजिस्ट्रेशन होगी हम हर जगह इंशाअल्लाह लोरलाई में भी करेंगे, जॉब में भी करेंगे। जहाँ जहाँ रजिस्ट्रेशन होगी हम इंशाअल्लाह लैब कायम करेंगे, अपने खर्चे पे करेंगे, टीचर अपने खर्चे पे तनख्वाह खुद दे देंगे, मुफ्त इंशाअल्लाह नौजवानों को हम IT की तालीम देंगे और उनके स्किल डेवलपमेंट की हम इंशाअल्लाह तालीम देंगे, ताकि नौजवान खुद कफालत की तरफ जाए, ताकि नौजवानों को एक उम्मीद दिलाए, ताकि नौजवानों को हम एक पैगाम दे दें कि मायूस ना हो। अल्लाह पाक ने आपको बेशुमार सलाहियतें दी हैं, आप हिम्मत करें, हौसला रखें और जद्दोजहद करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके बंद रास्ते खोल देगा। हम बतौर एक सियासी तंजीम के, एक समाजी तंजीम के इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने बलूचिस्तान के नौजवानों को तालीम दें, स्किल डेवलपमेंट की तालीम दें, हुनर की तालीम दें, उनको मायूसी से निकालें, उम्मीद का पैगाम दे दें और यही नौजवान हमारी मुल्क और मिल्लत को और बलूचिस्तान को इंशाअल्लाह तरक्की देंगे। मैं आप तमाम साफियों को दावत देता हूँ, कल 4 बजे अयूब स्टेडियम में आप भरपूर तरीके से, जो सोशल मीडिया के हमारे दोस्त हैं, मीडिया के, प्रिंट के, इलेक्ट्रॉनिक के जितने हैं, वो कल इंशाअल्लाह शाम 4 बजे अयूब स्टेडियम में भरपूर शिरकत भी करें और पहले जो हमारा साथ देते रहे। कल इंशाअल्लाह अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर्रहमान साहब इस बनो काबिल प्रोग्राम को पूरे बलूचिस्तान में लॉन्च करने जा रहे हैं, उसका इफ्तिताह है कल। इंशाअल्लाह एक उम्मीद का पैगाम होगा। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, कल आपका इंशाअल्लाह मुंतज़र है। साहब ने बता दिया। हमने आपसे 1.5 महीना पहले यही नशिश की थी कि हम इंशाअल्लाह इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। मजमूई तौर पर हमारे पास बलूचिस्तान में अब तक की जो रजिस्ट्रेशन है वो कोई 15,500 है, जिसमें से 12,000 तो कोयटा की है, बाकी 3,500 जो है वो उसमें जाफराबाद भी है, उसमें गवादर भी है, उसमें लोरालाई भी है और योब भी हमारे पास उसमें है और छोटे दीगर डिस्ट्रिक्ट भी उसमें शामिल है। तो इसके बाद जो जैसे मौलाना साहब ने कहा कि हमारा कल के प्रोग्राम के बाद अगला जो हमारा मरहला है वो इंशाल्लाह जाफराबाद है, फिर गवादर है और इसके साथ ही लोरालाई है। इन 4 जगहों पर इंशाल्लाह हम पहले मरहले पर कोयटा में और 3 ये दीगर शहर है इनमें स्टार्ट करेंगे। हमारी लैब होगी, इसका तरीक़ेकार यही है। रजिस्ट्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तवक्को से बहुत ज़्यादा है, यानी कि हम इतनी ज़्यादा तवक्को नहीं कर रहे थे कि कोयटा की आवाम, नौजवान, बच्चे बच्चियाँ इस जोशो खरोश से जी, हालांकि पूरा ये महीना जो अगस्त का महीना रहा है वो डिस्टर्ब रहा है
इंटरनेट के हवाले से बहुत सारे सवालात भी रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि अब गवर्नमेंट बंद नहीं कर सकती क्योंकि इतना प्रेशर था नेट के हवाले से भी, और ये अब मुस्तकबिल में भी इसका नहीं रहेगा इंशाल्लाह। तो आईटी का दौर है, तो बच्चों का बहुत ज़्यादा रिस्पांस है, लोग बार बार खुद आकर पूछते रहे कब होगा कब होगा। तो इंशाल्लाह ताला कल एक बड़े पैमाने पर इसका टेस्ट है, और इंटरव्यू के बाद फिर इंशाल्लाह ताला 15 अक्टूबर से इसकी हम बाकायदा क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे, और जितने भी ये नौजवान हमारे पास आएंगे इन सब को हम गुजारेंगे, प्रोसेस से गुजार कर इंशाल्लाह ताला हमारा ये है कि उन्हें एक बाइज्जत रोज़गार की तरफ लेके जाएंगे, ताकि ये आईटी इंडस्ट्री से ये नौजवान जुड़ें। इससे मुल्क की मैशत भी बेहतर होगी। इन नौजवानों की बच्चे बच्चियां घरों में बैठ कर जो है ना अपना ये मोबाइल इस्तेमाल करके बहुत सारा अपने लिए जो है ना वो सरमाया भी इकट्ठा कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, बाइज्जत रोज़गार जो है ना उनको मिलेगा इंशाल्लाह ताला। देखिए इसमें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस ये आया है। हम तो एक लैब बनाने का सोच रहे हैं, लेकिन दीगर बहुत सारे इदारे हैं जो हमें अपनी लैब ऑफर कर रहे हैं अभी। लेकिन हम पहले मरहले पर एक ही लैब से स्टार्ट करेंगे, और उसमें हमारे पास 1000 की से ज़्यादा की कैपेसिटी मौजूद है। लेकिन हम इसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, फिर सेकंड मरहले पर हम दूसरी लैब स्टार्ट करेंगे, तीसरी। ये बुनियादी तौर पर ये प्रोग्राम ऐसा है जो हाफिज़ साहब का विजन है कि हम इन बच्चों को गुजारेंगे ज़रूर इस प्रोसेस से, इल्ला कि कोई बच्चा रह गया जो नहीं करना चाह रहा हो, वरना हम इंशाल्लाह इनको लेकर चलेंगे और सबको करवाएंगे। ये जितने रजिस्ट्रेशन होंगे सबको इससे गुजारेंगे इंशाल्लाह। इसमें फाइल का कोई तस्वर नहीं है जी। इसमें बुनियादी तौर पर देखिए मैंने कहा कि लैब हम एक बना रहे हैं, लेकिन हम बाकी बहुत सारे इदारे हैं, कुछ गवर्नमेंट के इदारे भी हैं, कुछ प्राइवेट इदारे भी हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उनके पास लैब्स बनी हुई हैं। वो खुद अपनी ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारी लैब्स को इस्तेमाल कर लें। पहली बात तो ये कि हम एक लैब से शुरू करके, और हमारा सरियाब में इंशाल्लाह इरादा है बरूरी की तरफ एक लैब बनाएंगे, एयरपोर्ट रोड कुचलाक और नवाकिली में। पहले मराइल में तो हम इन पे लैब बनाकर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। टीचर्स का जहाँ तक ताल्लुक है फैकल्टी का, फैकल्टी हमारी यहाँ की लोकल होगी, लेकिन उसको हम ट्रेनिंग जो है वगैरह जो करवाएंगे, हमारा हेड ऑफिस जो लाहौर है और कराची ऑफिस है, क्योंकि जाहिर बात प्रोग्राम कराची ने शुरू किया है, इसका सारा जो कोर्सेज है, इसकी सारी जो बने हुए मास्टर ट्रेनर्स हैं वो वहाँ से आएंगे, इनको ट्रेनिंग करवाएंगे, और वो फिजिकल ट्रेनिंग करवा कर मास्टर ट्रेनर्स बनाएंगे, और फिर ये आगे इंस्टीट्यूट चलेगा। 3 महीने का कोर्स है, मैंने पिछले उसमें भी गुजारिश की थी, और ये 2 घंटे की क्लास है, टोटल 48 घंटे का ये कोर्स है। तो हफ्ते में 2 क्लासें मतलब बच्चा पढ़ेगा हमारे पास, लेकिन एक दिन में क्योंकि लैब हमारे पास है तो 4 सेशन भी हम कर सकते हैं, 6 भी करेंगे। बुनियादी चीज़ इसमें एक और है कि हम बच्चियों की क्लास अलग करेंगे और बच्चों की क्लास अलग होगी। तो उसमें हमारे पास एक सेंटर के अंदर कम से कम 1 से 1,500 की कैपेसिटी हमने रखी हुई है, तो जो कि बच्चे आएंगे रिपीट करेंगे और यहाँ से फारिग होंगे इंशाल्लाह। 3 महीने बाद हम आपको दोबारा जहमत भी देंगे, उन बच्चों को आप सामने पेश भी करेंगे जिनको हमने सिखाया होगा इंशाल्लाह ताला। ये हमारा आपसे वादा भी है।